Hello students, I am Anurag Rai. Today I am going to explain chapter number 5 of Special English MP Board class 10th. So the name of the chapter is Two Gentlemen of Verona. This is a story about two gentlemen, about two young boys named Nicola and Jacopo. These two boys belonged to Verona city in France. So these two boys, Jacopo and Nicola, they are real brothers. Once they belonged to a cultured and well settled family. Their father was a well known singer. They also had a sister named Lucia. So this story is about this story was written by the author during the period of Second World War. The story is during the Second World War, when the Germans attacked the French. So the two boys lost their family during the World War. Their father, a well-known singer, had been died in the early part of the Second World War. Shortly afterwards, a bomb destroyed their house, throwing the two children, Jacopo and Nicola, and their sister Lucia into streets. After some time, the two boys came to know that their sister was suffering from tuberculosis of spine. The two boys admitted their sister Lucia in a hospital in Poletta, about 30 kilometers away from Verona. The two boys, Jacopo and Nicola, started working hard and doing various petty jobs in order to earn money. They started working very hard in order to earn money to meet out the expenses of the treatment of their ailing sister. This story, Two Gentlemen of Verona, is a greater hope to the crumbling human society and human values. So students, we will start thorough reading of the chapter and we will thoroughly translate the chapter from English to Hindi. But the chapter is lengthy, so I am going to make two or three videos, two or three part of the same chapter. So we start thorough reading and thorough translation of the chapter Two Gentlemen of Verona. A.J. Cronin, born in year 1896 and died in the year 1974. A.J. Cronin was the author of the story. A.J. Cronin was a doctor by training. A.J. Cronin जो थे वो अपनी पढ़ाई से, शिक्षा से डॉक्टर थे. He practiced medicine in Wales and in London. उन्होंने अपनी मेडिसिन की प्रैक्टिस वेल्स में और इंग्लैंड के लंदन शहर में करी थी. वेल्स जो है वो इंग्लैंड के पास ही एक कंट्री है और यूनाइटेड किंगडम का ही एक पार्ट माना जाता है. इट वॉज वाइल रिकवरिंग फ्रॉम ब्रेकडाउन इन हेल्थ दैट ही रोट हिज फर्स्ट नॉवेल हैटर्स कैसल. एक बार इनकी ए.जे. क्रोनिन का स्वास्थ्य खराब हुआ और घर पर आराम करते हुए, स्वास्थ्य में रिकवरी होते हुए उन्होंने अपना पहला नॉवेल हैटर्स कैसल नाम का लिखा. इट वॉज अ ह्यूज सक्सेस. ये नॉवेल बहुत ज़बरदस्त सफल रहा. क्रोनिन गेव अप प्रैक्टिसिंग मेडिसिन एंड टुक टू राइटिंग एज अ करियर. क्रोनिन ने अपनी मेडिसिन की प्रैक्टिस छोड़ दी और राइटिंग को अपने करियर के रूप में चुन लिया. ही रोट अ नंबर ऑफ नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज़. उन्होंने बहुत सारी उपन्यास और लघु कथाएँ लिखी.
Some of his best known novels have been made into successful films. इनकी कुछ सबसे अच्छे सर्वोत्तम जाने माने जो नॉवेल्स हैं उनको उन नॉवेल्स पर आधारित कुछ बहुत ही सफल फिल्मों का निर्माण भी किया गया है. द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज़ फ्रॉम वन ऑफ द अर्लियर प्लेज ऑफ शेक्सपियर. इस कहानी का जो नाम लिया गया है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये शेक्सपियर के प्रारंभिक नाटकों में से एक में से लिया गया है. द स्टोरी रिकाउंट्स द हार्ड लाइफ चूजन बाय टू यंग बॉयज़ so that they could pay for the treatment of their sister afflicted with tuberculosis. ये कहानी ऐसे दो छोटे बच्चों के जीवन के बारे में वर्णन करती है जिन बच्चों ने बहुत कठिन परिश्रम को चुना. अपनी बहन जो कि ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित थी उसके इलाज के खर्चे के पैसे जुटाने के लिए उन बच्चों ने बहुत ही कठिन परिश्रम से भरा जीवन चुना. ऐसे बच्चों की कहानी का वर्णन ये करती है. The boys loved their sister so sincerely that they were prepared to make any sacrifice for her ungrudgingly. ये दोनों बच्चे अपनी बहन से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने अपनी बहन के खातिर सभी प्रकार का त्याग और बलिदान बिना किसी हिचकिचाहट के किया. Their sacrifice, their sincerity and devotion to the cause and the maturity they display in their actions give a new hope for humanity. उनका त्याग, उनकी कर्मठता और इस कारण के लिए उनका समर्पण और सबसे बड़ी बात कि उनकी मैच्योरिटी, उनकी परिपक्वता जो वो अपने कामों में दिखाते हैं, ये मानव समाज को, एक मानवता को एक नई आशा देता है. तो लेखक स्टोरी यहाँ से स्टार्ट करता है. अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं. एज वी ड्रोव थ्रू द फुट हिल्स ऑफ द आल्प्स, two small boys stopped us on the outskirts of Verona. They were selling wild strawberries. लेखक कह रहा है कि जब हम फ्रांस में आल्प्स नाम की पर्वत श्रृंखला है, तो लेखक कहता है जब हम आल्प्स पर्वत श्रृंखला के पर्वतीय रास्तों से अपनी गाड़ी से होते हुए अपनी कार से आगे जा रहे थे, तब वेरोना शहर की सरहद के पास हमें दो छोटे बच्चों ने हमारी गाड़ी को रोका. वे बच्चे जंगली स्ट्रॉबेरी फल बेच रहे थे. डोंट बाय, वार्नड ल्यूगी आवर कॉशियस ड्राइवर. यू विल गेट फ्रूट मच बेटर इन वेरोना बिसाइड्स दीज बॉयज़. हमारे सचेत ड्राइवर ल्यूगी ने, लेखक बोलता है, हमारे सचेत ड्राइवर ल्यूगी ने हमें चेताया और हमें बोला कि इनसे मत खरीदिए साहब, आपको इससे ज़्यादा बेहतर फल वेरोना शहर में मिल जाएंगे इन लड़कों के बजाय. He shrugged his shoulders to convey his disapproval of their shabby appearance. ल्यूगी ड्राइवर ने झुंझलाहट से अपने कंधे उचकाए. उन दोनों बच्चे जैसे वो थोड़े गंदे से, मैले कुचैले से जो दिख रहे थे, उनके प्रति अपनी घृणा प्रदर्शित करते हुए ल्यूगी ने अपने कंधे उचकाए. One boy had on a worn jersey and cut off khaki pants, the other a shortened army tunic gathered in loose folds about his skinny frame. एक बच्चा एक फटी पुरानी सी जर्सी पहना था और एक काट के बड़ी पैंट जो कि काट करके अपने नाप की छोटी बनाई हुई ऐसी खाकी कलर की पैंट पहना हुआ था. और दूसरा लड़का एक आर्मी वालों का जो ऊपर का ट्यूनिक होता है वो ढीला ढाला सा अपनी स्किनी, अपनी दुबली पतली सी शरीर पर ढीली ढाली आर्मी वालों की ट्यूनिक पहना हुआ था. Yet gazing at the two little figures with their brown skins, tangled hair and dark earnest eyes, we felt ourselves strangely attracted. लेखक कहता है कि उन दोनों बच्चों की तरफ लगातार देखते हुए, उन छोटी नन्ही आकृतियों की तरफ लगातार देखते हुए, उनकी भूरी त्वचा, उनके उलझे सुलझे बाल, उनकी गहरी ईमानदार सच्ची आँखें, इन सब को देखते हुए हमने अपने आप को उनके प्रति बहुत ही विचित्र तरीके से आकर्षित होता हुआ पाया. मतलब लेखक और लेखक का साथी उन बच्चों के प्रति बहुत ही आकर्षित हुए उनके अपीयरेंस को देखकर. माई कंपेनियन स्पोक टू द बॉयज़, डिस्कवर्ड दैट दे वर ब्रदर्स. लेखक बोला कि मेरा साथी ये जान करके कि वो दोनों लड़के जो थे वे दोनों सगे भाई थे, ये जान करके मेरे साथी ने उनसे कुछ बात करी.
निकोला द एल्डर वॉज 13. जैकोपो हु बियरली केम अप टू द डोर हैंडल ऑफ द कार वॉज नियरली 12. उन दोनों में से बड़ा भाई निकोला 13 वर्ष का था और जैकोपो जो कि अभी हमारी कार के दरवाजे के हैंडल के पास आकर खड़ा हुआ ही था, वो लगभग 12 वर्ष का था. वी बॉट देयर बिगेस्ट बास्केट देन सेट ऑफ टुवर्ड टाउन. लेखक बोलता है कि हमने उनकी वाइल्ड स्ट्रॉबेरी फल की सबसे बड़ी टोकरी बास्केट खरीद ली और फिर शहर की ओर निकल पड़े. नेक्स्ट मॉर्निंग कमिंग आउट ऑफ आवर होटल वी सॉ आवर फ्रेंड्स बेंट ओवर शू शाइन बॉक्सेस बिसाइड द फाउंटेन इन द पब्लिक स्क्वायर डूइंग अ ब्रिस्क बिजनेस. अगली सुबह लेखक कहता है कि जब हम होटल से बाहर सार्वजनिक चौराहे पर फाउंटेन के पास, फव्वारे के पास आए, तो हमने वहीं चौराहे के पास, फव्वारे के पास इन दोनों बच्चों को शू शाइन बॉक्सेस, जो जूते पॉलिश करने वाले वो डिब्बे होते हैं लकड़ी के, कुछ जूते पॉलिश करने वाले लोग होते हैं जो लकड़ी के छोटे से डिब्बे में जूते के ब्रश, पॉलिश की डिब्बी आदि, लेस वगैरह रख के घूमते हैं. कहीं पे बैठ गए और जूते पॉलिश किए, फिर वहाँ से उठ के कहीं और चले जाते हैं वो अपना डिब्बा लेके. तो ऐसा जूते पॉलिश करने वाला वो डिब्बा लेकर के बैठे हुए थे और बड़े ही फुर्ती में जूते पॉलिश करने का काम कर रहे थे. वी वॉच्ड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स देन एज ट्रेड स्लैकेंड वी वेंट ओवर. लेखक बोला कि मैं और मेरे साथी ने उन्हें कुछ पल निहारा, देखा, फिर जैसे जैसे उनका काम हल्का हुआ, उनके ग्राहक कुछ कम हुए, वो जूते पॉलिश करने के काम से थोड़ा फ्री हुए, तो हम उनके पास गए. दे ट्रीटेड अस विद फ्रेंडली फेसेस. उन दोनों बच्चों ने चेहरे पर दोस्ताना सी मुस्कुराहट के साथ हमारा अभिवादन किया. आई थॉट यू पिक्ड फ्रूट फॉर लिविंग, आई सेड. लेखक ने कहा कि लेखक बोलता है कि मैंने उन दोनों बच्चों से कहा कि मुझे तो लगा था कि तुम अपनी रोज़ी रोटी चलाने के लिए फल ही बेचते होगे, क्योंकि लेखक को अब ये आश्चर्य हुआ ना कि कल तो उसने फल बेचते हुए देखा था और आज उनको जूते पॉलिश करते हुए देख रहा है. तो लेखक बोलता है कि मैंने उन बच्चों से कहा, मुझे लगता था कि तुम शायद फल ही बेचते होगे अपनी रोज़ी रोटी चलाने के लिए. वी डू मैनी थिंग्स सर, निकोला आंसर्ड सीरियसली. ही ग्लैंस्ड एट अस होपफुली. ऑफन वी शो विजिटर्स थ्रू द टाउन टू जूलियट टॉम एंड अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट. निकोला ने गंभीरता से जवाब देते हुए कहा कि सर हम कई प्रकार के काम करते हैं. और लेखक बोलता है कि निकोला ने हमारी तरफ बड़े आशा भरी निगाहों से देखा. निकोला ने आगे बोला कि सर हम अक्सर शहर में आए हुए टूरिस्ट्स को, विजिटर्स को गाइड की तरह घुमाते हैं, गाइड का काम भी करते हैं, उससे उन्हें पैसे मिलते हैं. और बोला कि जूलियट का मकबरा भी घुमाने ले जाते हैं और शहर की अन्य कुछ अच्छी मनोरंजक जगह भी टूरिस्ट्स को, विजिटर्स को घुमाने ले जाते हैं. ऑल राइट, आई स्माइल्ड, यू टेक अस अलॉन्ग. लेखक मुस्कुराते हुए निकोला से बोला, बहुत अच्छी बात है, तो फिर तुम हमें अपने साथ शहर घुमाने ले चलो. एज वी मेड द राउंड्स माई इंटरेस्ट वॉज अगेन प्रोवोक्ड बाय देयर रिमार्केबल डिमीनियर. लेखक बोला कि जब हम लोग घूम रहे थे तो मेरा ध्यान, मेरी रुचि फिर से उन दोनों बच्चों के आकर्षक व्यवहार, उनके बर्ताव में फिर से मेरी रुचि जागी. दे वर चाइल्डिश इनफ एंड इन मैनी वेज क्वाइट आर्टलेस. लेखक बोला कि वे दोनों काफ़ी बच्चों जैसे भोले भाले थे और कई तरीक़ों से बहुत मासूम और भोले भाले थे. जैकोपो वॉज लाइवली एज स्क्विरल. जैकोपो वैसा ही जीवंत, खुशनुमा और हंसमुख था, चहकता हुआ था, जैसे कि कोई यहाँ वहाँ फुदकती हुई जीवन की खुशियों से भरी गिलहरी होती है. निकोलाज स्माइल वॉज स्टडी एंड इंगेजिंग. निकोला की जो मुस्कुराहट थी वो स्थिर और आकर्षित करने वाली थी. यट इन बोथ दीज बॉयिश फेसेस देयर वॉज अ सीरियसनेस विच वॉज फार बियॉन्ड देयर ईयर्स. लेखक बोला लेकिन फिर भी इन दोनों मासूम लड़कपन वाले चेहरों के पीछे एक गंभीरता थी जो कि इन दोनों बच्चों की उम्र के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा थी. मतलब इतनी उम्र के बच्चे, 12-13 वर्ष के बच्चे इतने ज़्यादा सीरियस नहीं होते, लेकिन इन दोनों बच्चों की उम्र को देखते हुए इनकी गंभीरता
काफ़ी ज़्यादा थी। इन द वीक विच फॉलोड वी सॉ देम फ्रीक्वेंटली फॉर दे प्रूव्ड एक्सट्रीमली यूज़फुल टू अस। लेखक कहता है कि अगला एक सप्ताह जो बीता उसमें हम इन दोनों भाइयों से, इन दोनों लड़कों से अक्सर मिलते जुलते बने रहे और ये दोनों भाई हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हुए। इफ़ वी नीडेड एनीथिंग और सीट्स फॉर द ओपेरा और द नेम ऑफ अ गुड रेस्टोरेंट, निकोला एंड जैकोपो कुड बी रिलाइड अपॉन टू सेटिस्फाइड आवर नीड्स। लेखक कहता है कि वेरोना शहर में अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती थी, जैसे किसी अच्छे ओपेरा हाउस में ओपेरा का परफॉर्मेंस देखने जाना है और उन्हें नहीं पता होता था कि कोई अच्छा ओपेरा हाउस कहाँ है, या फिर उनके टिकट लाइन में लग कर लेना हो, तो जैकोपो और निकोला इन दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुए और लेखक और उसके साथी के लिए ये दोनों भाई ऐसे छोटे मोटे काम कर दिया करते थे जिसके लिए लेखक उन्हें कुछ थोड़ा बहुत पे भी कर देता था। वॉट स्ट्रक वन मोस्ट वॉज देयर विलिंगनेस टू वर्क। सबसे ज़्यादा जो बात किसी व्यक्ति के मन में इन बच्चों के प्रति स्ट्राइक करती थी, प्रहार करती थी, वो बात थी काम करने के प्रति इनकी इच्छा, काम करने के प्रति इनकी उत्सुकता और इच्छा। ड्यूरिंग दीज समर डेज अंडर द हॉट सन दे शाइंड शूज़, सोल्ड फ्रूट, हॉग्ड न्यूज़पेपर्स, कंडक्टेड टूरिस्ट्स राउंड द टाउन एंड रैन इरेंट्स। लेखक बोलता है कि इतने गर्मी से भरे दिन में, तपती धूप में, तेज़ धूप के नीचे बैठे ये बच्चे जूते पॉलिश करते थे, फल बेचते थे, घर घर जाकर न्यूज़पेपर बांटते थे, बसेस में न्यूज़पेपर बेचते थे, शहर में टूरिस्ट्स को गाइड बन के घुमाते थे और सामान बेचने के लिए यहाँ वहाँ छोटी मोटी यात्राएं करते थे। सो फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू मेक another video of the same chapter since the chapter is lengthy, as I have already told you. So the rest of the chapter will be in my next video. If you like my video, please subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor for watching more videos. Thanks.